یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گرد آلود تیز ہواؤں کے بعد بارش سے موسم خوشگوار، آنے والے بادلوں کے برسنے سے گرمی کا زور سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عثمان حیدر سے۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد اور گرد و نواح میں تیز گرد آلود ہواؤں کے بعد موسم جو ہے وہ خاصا سہانا ہو چکا ہے، چونکہ بارش برس رہی ہے۔ گرج چمک کے ساتھ برسنے والی بارش کی بوندیں جو ہیں وہ شہریوں کو خوب بھا رہی ہیں۔ موسم سہانا ہو چکا ہے، خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شہری جو ہیں وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ رات کے اس پہر بھی موجود ہیں، چونکہ دن بھر سورج میاں کی جو تپتی ہوئی کرنیں ہیں شہریوں کو خوب ستاتی رہی، شہریوں کے چہرے مرجھائے ہوئے دکھائی دیے۔ اب چونکہ موسم جو ہے وہ سورج ڈھلتے ہی خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، ہوائیں چل رہی تھی اور گرد آلود ہواؤں نے فیصل آباد میں ڈیرے جما لیے تھے۔ البتہ اس کے بعد جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے نوید سنائی گئی تھی کہ آنے والے بادل ضرور برسیں گے، تو بارش برسنا شروع ہوئی ہے اور شہری جو ہیں وہ اس بارش کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے وہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، جبکہ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو شہری اس حوالے سے بھی خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ موسم چاہے کس قدر گرم ہو، لیکن آنے والے بادل جو ہیں وہ موسم کو خوشگوار کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی بوندیں برس رہی ہیں اور بوندوں کے دوش پہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ موسم بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عثمان حیدر۔ درآمدی پابندیاں، شعبہ ٹیکسٹائل جدید مشینری سے محروم۔ اپریل میں ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات گزشتہ سال کی نسبت 70% کم۔ نئی مشینری کی درآمد میں کمی سے سینکڑوں فیکٹریاں کباڑ کی نظر ہونے لگیں۔ وحید خالق ڈرامے کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی مشینری لوگوں نے منگوائی، لیکن حالات کے پیش نظر سب پیچھے ہٹ گئے۔ بڑھانے سے قاصر ہے، وہیں جدت سے بھی محروم ہے۔ نئی فیکٹریاں لگائی نہیں جا رہی، جبکہ پہلے سے موجود کباڑ کی نظر ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال برآمدات میں بہتری کی وجہ سے اربوں ڈالر کی مشینری درآمد ہو رہی تھی، تاہم رواں سال اپریل میں ٹیکسٹائل مشینری درآمدات 70% کم ہوئی۔ درآمدی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں $55,163 کی ٹیکسٹائل مشینری درآمد کی گئی، جبکہ رواں سال کم ہو کر $15,921 رہی۔ مجموعی طور پر رواں مالی سال کے 10 مہینوں میں ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات 55% کم ہوئی۔ پاور لومز اونر کا کہنا تھا، ایک طرف انڈسٹریلائزیشن کا کہا جاتا ہے، دوسری طرف یہ اعداد و شمار کھلی تصویر ہیں۔ چیئرمین کونسل فار پاور لومز اونر وحید خالق رامے نے کہا کہ اربوں ڈالر کی مشینری منگوائی، مگر اب سب پیچھے ہو گئے۔ اگر جدت نہ لائی گئی تو عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کرنا اور پروڈکشن میں تیزی ناممکن رہے گی۔ حالات اتنے خراب ہیں، جب بجلی کا ریٹ 55 پہ یونٹ ہو جائے گا، گیس پہ سبسڈی ابھی ختم کر دی گئی ہے، ایکسپورٹ ڈکلائن ہے، تو جو 500 ارب روپے کی ایک ٹف اسکیم کے تحت مشینری امپورٹ ہونی تھی وہ ہوئی پاکستان کے اندر، وہ انسٹال بھی اس میں سے بیشتر مشینری ہوئی، لیکن وہ چل نہیں سکی، اور بہت ساری مشینری جو ہے وہ ایل سیز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پورٹس کے اوپر پڑی رہی ہے۔ صنعت کار اربوں ڈالر کی مشینری منگوا کر پیداواری لاگت پوری نہ ہونے کی وجہ سے چلانے سے قاصر ہیں۔ کیمرمین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایک طرف مہنگائی میں اضافے سے کاروبار متاثر، تو دوسری طرف ٹرانسپورٹرز نے بھی کسر نہ چھوڑی۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر بھی کرائے کم نہ کیے۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات تاجروں کی جیب پر بھاری پڑنے لگے۔ کہتے ہیں مہنگی ٹرانسپورٹ کے باعث دیگر شہروں کے خریداروں نے فیصل آباد آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں فضیل احمد کی یہ رپورٹ۔ صنعتی شہر میں جہاں بے لگام مہنگائی سے کاروبار متاثر ہے، وہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی تاجروں کی حالت پر رحم نہ آیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے۔ مہنگی ٹرانسپورٹ کے باعث فیصل آباد کی کپڑا مارکیٹوں کے تاجر شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ صدر مبین صدیق سینٹر 2 حاجی سرفراز کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں، مگر پیٹرول سستا ہونے پر کرائے کم نہیں کرتے۔ گورنمنٹ تو اب ریلیف دے رہی ہے، پیٹرول کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مارکیٹ کو 1% بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن والے ہیں وہ 1 روپیہ بھی ریٹ کم نہیں کر رہے، اپنے کرائے جو ہیں نا وہ کم نہیں کر رہے۔ تاجروں نے مزید کہا ہے کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ مہنگی ٹرانسپورٹ کے باعث دیگر شہروں کے خریداروں نے بھی فیصل آباد آنا چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے ضرور کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی لیکن کرائے کم نہیں ہوئے۔ غریب آدمی تو وہاں کے کھڑا ہے، اب کرائے کم ہو گئے تو ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت تو کم ہوئی ہے لیکن کرایہ نہیں کم کر رہے۔ کوئی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ عوام کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کرے۔ تاجروں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز کے کرائے بھی کم کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔
वासा कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से बिजली से महरूम। बिल ना भरने पर वासा के कनेक्शन दोबारा मुनक़ता। डायरेक्टर फाइनेंस कहते हैं 11 दिन कबल किस्त जमा कराई, डिस्पोजल बकाया जात हैं। प्रेशर बढ़ाने के लिए हेड ऑफिस की बिजली मुनक़ता की जाती है। दूसरी जानिब माली साल खत्म होने को मगर फेस्को सरकारी डिफॉल्टर से वसूली ना कर सका। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास पे। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस की बिजली दोबारा मुनक़ता कर दी। डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से 23 तारीख को बिजली मुनक़ता की जा रही है, जबकि फेस्को को बिजली के बिल की मद में 11 दिन कबल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी की गई थी। इससे कबल भी गुज़िश्ता माह नादहिंदगी के बाद 16 रोज वासा हेडक्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता रही। शहरियार हसन का कहना था कि हुकूमती फंड्स मिलने तक तमाम वाजिबात यकमुश्त अदा करना वासा के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलेशन हैं हमारे, जिसमें डिस्पोजल स्टेशन हैं, हमारे ट्यूबवेल्स हैं, वो काफ़ी हद तक हम नहीं जमा करवा पा रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को काफ़ी बार रिक्वेस्ट भेजी है कि फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। जो ही फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है हम फेस्को पेमेंट करवाते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस का मजीद कहना था कि हेड ऑफिस के कनेक्शन का बिल मुकम्मल अदा है। मुख्तलिफ डिस्पोजल पर बकाया जाते हैं जिन पर हेड ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता करके प्रेशर बढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब फेस्को ज़राए का कहना था कि नादहिंदगान से वसूली के लिए कार्रवाइयां जरूरी हैं। माली साल खत्म होने को है मगर सरकारी डिफॉल्टर से वसूली नहीं हो सकी। वासा समेत 11 सरकारी इदारों ने फेस्को को 70 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। वासा काम का कहना था कि हुकूमत से फंड्स फराहम करने की दरखास्त की है। फंड्स मिलने तक 3 करोड़ 50 लाख से जायद की अदायगी के बावजूद कनेक्शन मुनक़ता करना फेस्को की जानिब से ज्यादती है। कैमरामैन जुनेद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और बहाली जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से 276 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से 240 मुकम्मल बहाल। डिप्टी कमिश्नर ने दीगर 36 फिल्ट्रेशन प्लांट से भी 10 रोज में पानी की फराहमी शुरू होने की नवीद सुना दी। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों को साफ पानी की फराहमी की जानिब अहम कदम। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान कमर ने जिला भर में मौजूद 276 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से 240 को मुकम्मल बहाल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मजीद 36 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 10 रोज में बहाल हो जाएंगे। जिला भर में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी मुयसर होगा। 276 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट निकले और जिनमें से तकरीबन 50-60 जो थे वो ख़राब थे या वो काम नहीं कर रहे थे। और छोटे छोटे मसाइल थे, किसी का बिजली कटी हुई थी, किसी की टूटी ख़राब थी, किसी के कुछ इस तरह के मसले थे। तो अब हमने माशाल्लाह उसमें से तकरीबन 16 ठीक करवा लिए। बाकी 19 के करीब रह गए जिन पे मज़ीद काम हो रहा है। और टारगेट तो सीएम साहब ने ऑलरेडी बहुत हमें टाइट दिया हुआ कि जल्दी करें। जिला भर में मुख्तलिफ अदारों और NGOs की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से जिला कौंसिल के 59, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 55, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के 50, म्यूनिसिपल कमेटियों के 23, कैलाश ग्रुप के 9, जेलानी डाइंग के 9, सर्वर ट्रस्ट के 27, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के 32 और कॉलेजेस के 12 फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम प्लांट्स को मुख्तलिफ NGOs और ताजर बिरादरी के ताउन से मुकम्मल फंक्शनल किया जाएगा। बेसिकली NGOs से ही करवा रहे हैं। सैलानी ट्रस्ट है, हमारे पास 2-4 मुखैर हजरात हैं, वो कर रहे हैं। एप्टमा हमारी हेल्प कर रही है। तो ये वो इदारे हैं जो कि बेसिकली NGOs हैं और ये खुद आके और ये एक नेकी का काम है, हमारी मदद कर रहे हैं। अली अन्नान कमर का कहना था कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक गर्म मौसम में शहरियों को पीने के साफ पानी की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, नुस्खा मिलेगा दवा नहीं। अपना इलाज कराना है तो अपनी दवाई भी खुद खरीदनी होगी। फैसलाबाद की टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज की अद्वियात नायाब। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीजों का इलाज रुक गया। मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। में जिगर का इलाज कड़ा इम्तिहान। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में तकरीबन 3 माह से हेपेटाइटिस की अद्वियात नहीं मिल रही। मरीजों का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात मौजूद नहीं हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से 5000 रुपए की अद्वियात मिल रही हैं। महंगाई में अद्वियात खरीदें या घर का निजाम चलाएं। हुकूमत अस्पतालों में हेपेटाइटिस अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। ताके आए निक्के निक्के बच्चे गरीब बहु बंदे आए, रोटी पूरी नहीं आती ते इथों दवाई लेनी है 5000 जी सानू नहीं लभदा। ਅਸੀਂ ਸਮਨਾਬਾਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਮੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ जलील होके तो बड़ी दूर होके आए हैं। MS जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि फरवरी से हेपेटाइटिस की अद्वियात खत्म हैं। हुकूमत अद्वियात के 15000 बैच फराहम करने जा रही है। 1 से 2 हफ्तों में अद्वियात मिलना शुरू हो जाएंगी।
हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन जो है ये तकरीबन कुछ माह से ख़त्म हुई है, क्योंकि पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट हमें ये प्रोवाइड करता था। अब प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर को खुद अपनी परचेज़ करें, तो इस सिलसिले में जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है वो 15,000 पैक जो है उन्होंने अरेंज कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये जल्द कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा, तो उसके बाद हम मरीजों को ये मेडिसिन देनी शुरू कर देंगे। तीनों अस्पतालों में रोजाना तकरीबन 150 से जायद मरीज अद्वियात के हसूल के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग वालों से अंदरूनी चोट की तलाश का आसान और फौरी हल छिन गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब, मर्ज की तशखीस और तरीक़े इलाज का चुनाव मुश्किल हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की खराबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों के साथ आए तिमाददारों का कहना था कि आए रोज मशीन खराब होने के बायस मुश्किलात दरपेश है। मरीजों ने हुकूमत से नई सिटी स्कैन मशीन फराहम करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक अच्छी खबर। महकमा सेहत का निजी NGO के ताउन से जिला में 3 करोड़ की लागत से 12 क्लिनिक बनाने का फैसला। दूसरी जानिब महकमा सेहत तोबा को इंसुलिन की 49,000 वायल की बड़ी खेप मौसूल हो गई। मुतालिक अच्छी खबर। महकमा सेहत का निजी NGO के ताउन से जिला में 3 करोड़ की लागत से 12 क्लिनिक बनाने का फैसला। निजी NGO के ताउन से बनने वाले क्लिनिक में 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंद यार का कहना था कि मंसूबे में 10 क्लिनिक और 2 पोर्टेबल यूनिट शामिल हैं। ये क्लिनिक हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के तहत काम करेंगे। क्लिनिक्स की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। टोबा टेक सिंह में ज़ियाबतीस का शिकार मरीजों के लिए बड़ी खबर। महकमा सेहत को इंसुलिन के 49,000 वायल की बड़ी खेप मौसूल हो गई। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद मरीजों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। टोबा में DHQ अस्पताल समेत जिला भर के तमाम मराकज़ सेहत में 3 माह से इंसुलिन गायब है। ज़ियाबतीस के मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना था कि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन खरीदी गई है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में 15 से 30 रोज लग सकते हैं, जिसके बाद इंसुलिन मरीजों को फराहम कर दी जाएगी। महकमा खुराक फैसलाबाद की गंदम खरीदारी अहदाफ सुस्त रवि का शिकार हो गए। महकमा खुराक अब तक 6,64,000 बोरियां ही खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 57% रिकॉर्ड कर ली गई। गैर कानूनी गंदम की स्मगलिंग से सरकारी कोटा मुतासर होने लगा। महकमा खुराक को जिला भर से 1,10,000 मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हादस मिला था, जिसमें से अब तक सिर्फ 6,64,000 बोरियां ही खरीदी जा सकी हैं। महकमा खुराक हुकाम के मुताबिक 11 जिला के गंदम खरीदारी मराकज में बारदाना की फराहमी और गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूलियों के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर महीने FPR को फराहम करेगा। दूसरी जानिब शहरी रवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूलियों के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर महीने FPR को फराहम करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी SRO के मुताबिक फेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियां सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगी। तकसीमकार कंपनियां माहाना बुनियाद पर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की पाबंद होंगी। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों की तफसीलात FPR को फराहम करेगा। बिल अदा न करने वाले कमर्शियल और सनती सार्फिन को सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। जिस महीने बिल अदा होगा उसी महीने टैक्स एडजस्टमेंट मिल सकेगी। शहरी रवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,15,000 से जायद शहरियों ने टैक्स बुकिंग के जरिए अदा किया, जबकि हुकूमत की जानिब से भी बुकिंग के जरिए अदायगी पर टैक्स में 5% रियायत दी जा रही है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को रवां माली साल के दौरान 1,15,000 से जायद अफराद ने अदायगियाँ ऑनलाइन की। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 50,000 से जायद अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स पेमेंट के जरिए किया, जबकि 45,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए के लगभग टैक्स वसूली की गई। दूसरी जानिब FPR के ऑनलाइन सिस्टम पर रसाई महदूद होने से टैक्स गुजारों को परेशानी दरपेश। टैक्स गुजारों को अब किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए FPR दफातर में पेश होकर मुतालिका अफसरान से इजाजत हासिल करना होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल से नाम की दुरुस्तगी, तब्दीली या फिर पासपोर्ट तब्दील करने जैसे मुतादिद फंक्शंस में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। NTN के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। टैक्स गुजार अब कोई भी तब्दीली मुतालिका अफसर से इजाजत मिलने के बाद करा सकेंगे।
एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। सारिफ ने बिजली का मीटर उतारने पर मुबैना तौर पर STO पीपल्स कॉलोनी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सारिफ के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफ का मीटर 5 लाख की अदम अदायगी पर उतारा गया था। STO पीपल्स कॉलोनी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर सारिफ के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। फेस्को हुकाम का मजीद कहना है कि सारिफ ने अपने साथियों के हमरा तशद्दुद किया, जो कि नाकाबिले कबूल है। ट्रैफिक पुलिस की गफलत, लाखों मालियत की मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील। थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले किया गया, ना ही जिले पुलिस के सपोर्ट। नीलामी ना करके सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। देखते हैं तैयब मकबूल की ये रिपोर्ट। थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में भी साल से बंद मोटरसाइकिलों की धूप और बारिश से हालत खराब, कबाड़ में तब्दील हो गए। ट्रैफिक सेक्टर्स में 2000 से ज्यादा बंद मोटरसाइकिलों को मालकान के हवाले किया, ना ही जिलाई पुलिस के सुपुर्द किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में तवील में ली गई मोटरसाइकिलें ट्रैफिक सेक्टर्स के हाथे में नीलामी की मुंतजिर हैं। उनसे बाइक का मुतालबा करते हैं कि आप बाइक दे दें, वो कहते हैं कि जब मिलेगी आपकी ढूंढ के दे देंगे, जबकि उधर बहुत सारी बाइक्स हैं जो खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा उनका तबाह हाल हो गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाइक उन्होंने हमें दी नहीं है। प्लेन वगैरह करवाई है, FIR भी करवाई है, पर बाइक वगैरह कोई नहीं है दे रहे। तो कह रहे हैं क्या नाम है मिल जाती है तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए, तो ये बाइक वगैरह कोई नहीं दे रहा है। तो काफ़ी देर बाइक वगैरह खड़ी हैं धूप में, ऐसी गल सड़ रही हैं, तो ये कोई भी नहीं दे रहा है। साल से ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद मोटरसाइकिलें खुले आसमान के नीचे पड़ी रहने की वजह से जंगलूद होकर कबाड़ की गई। शहरी कहते हैं ट्रैफिक हकाम ने मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया और ना मालकान तलाश करने की कोशिश की। मोटरसाइकिलें खराब करने की बजाय मुतासरीन के हवाले की जानी चाहिए। इन मोटरसाइकिलों की बरवक्त नीलामी से ट्रैफिक पुलिस को माली फायदा हासिल हो सकता था। मोटरसाइकिलों की नीलामी ना करके सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की डंपर एसोसिएशन और रेत बजरी के ठेकेदारों से मुलाकात। रेत बजरी की तरसील के दौरान ऊपर शीट डालने की हिदायत की। सेक्रेटरी DRTA को खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी और जिले सदर डंपर एसोसिएशन चौधरी जावेद सलीम गुज्जर समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी DRTA असलम ज़िया ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में 6 लाख से ज़ायद जुर्माने और चालान किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स, ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। हादसात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम किए जाएं। मीटिंग में मुतल्लिका महकमों ने रवां साल डंपर्स के सबब होने वाले हादसात और कीमती जानों के ज़िया और जख्मी होने वालों की तादाद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादर की फैसलाबाद आमद। साबरिया सराजिया हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी, स्पेशल एजुकेशन सेंटर और GC विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। स्कूल और विमेन यूनिवर्सिटी में सफाई सुथराई की बेहतर बनाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ने अपने हाथ से मेज़ और LCD साफ की। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। मिशन एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादर ने फैसलाबाद आमद पर साबरिया सराजिया हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी का दौरा किया। क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब में सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत, कंप्यूटर लैब को अपग्रेड करने की यकीन दहानी भी कराई। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर, ADC काशिफ रजा अवान, DO सेकेंडरी मलक मंजूर अहमद, DO एजुकेशन अब्दुल सत्तार, नवीदुल हक, प्रिंसिपल नवाज गुलजार व दीगर साथीज़ा भी मौजूद थे। लैब्स जो है उसका मेयार उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। इसकी एक्सपेंशन के लिए भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे और मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हुकूमत के वसाइल इजाज़त दें तो इस स्कूल के लिए हम एक ऑडिटोरियम भी का मनसूबा भी मंजूर करवाएं। वज़ीर तालीम मंसूर कादर ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर पीपल्स कॉलोनी का भी दौरा किया। प्रिंसिपल स्पेशल स्कूल नाजिया जबी ने वज़ीर तालीम को अदारे का दौरा कराया। इस मौका पर खुसूसी तलबा ने रवायती रक्स भी पेश किया। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मंसूर कादर ने GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के दौरे के दौरान क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया। सफाई ना होने पर सूबाई वज़ीर मंसूर कादर ने अपने हाथ से मेज और LCD साफ की। सूबाई वज़ीर मंसूर कादर ने तालिबात को अपने कमरों को साफ सुथरा रखने की तरगीब दी। बरामदों में लड़कियों को जमीन पर बैठा देकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बैठने का मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन कमीशन ने VC वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फरूक, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली व दीगर फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर का कहना था 16 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की सीटें खाली हैं, जबकि 14 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की सीटें जून में खाली होने जा रही हैं। तमाम 30 यूनिवर्सिटियों में VC की तैनाती का अमल शुरू कर दिया है ताकि मेरिट पर अहल वाइस चांसलर तैनात किए जा सकें। वाइस चांसलर की सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं और ये प्रोसेस जो है इंशाल्लाह ताला 10 जून तक मुकम्मल हो जाएगा और इसमें फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सिलेक्शन का अमल भी शामिल है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए एक फुल टाइम और परमानेंट वाइस चांसलर की तकर्री कर सकें। मंसूर कादर ने अलाइड अस्पताल में तमाम सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि यहाँ पर मरीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम इजला के सरकारी इदारों का दौरा कर रहा हूँ। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर रशीद, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, लासाल स्कूल फैसलाबाद के साबिक तलबा की 30 साल बाद रीयूनियन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अली रजा ने 1993 में मैट्रिक करने वाले क्लास फेलोज को इकट्ठा कर दिया। लसाल स्कूल फैसलाबाद के 30 साल पहले के मैट्रिक फेलोज को स्कूल ने अपनी तरफ खींच लिया। साबिक तलबा की 30 साल बाद लसाल हाई स्कूल फैसलाबाद में रीयूनियन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अली रजा ने 1 माह की मेहनत में मैट्रिक करने वाले अपने क्लास फेलोज को ढूंढ निकाला। दोस्तों से ही हमें मिल गया। फैसलाबाद इज अ वेरी people know each other. It's a very good city. So luckily we started after Eid and today we are here. Almost like 50-60 people here. So I came from London. This is my friends. They are from Canada. कुछ USA से हैं। 40 हम जमातों ने 3 दहाइयों बाद स्कूल का दौरा किया। साबिक तलबा ने बास्केटबॉल खेली, क्लासरूम्स का जायजा लिया और पुरानी यादों को ताज़ा किया। हमें अभी वो पुरानी शक्लें याद आ रही हैं। वो यूनिफॉर्म में हम इकट्ठे बैठना, ग्राउंड में खेलना, टीचर से चिट चैट करना, वो हम उसको सबको रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे। एक हयात नौ जिसको कहते हैं, आफ्टर 30 इयर्स दोबारा उस सीन में वापस जाना, बैक इन द पास्ट। हम लोगों ने अपनी कैंटीन को ढूंढने की कोशिश की, अपने टीचर्स को देखा। रीयूनियन के मौके पर जवाद शफीक, हमाद हुसैन, अवैध शेख, जिशान उमर, डॉक्टर मौजम, आसिम शहजाद, बासित मकबूल, फरहान रसूल, आतिफ मजीद और दीगर शामिल थे, जिन्होंने अपनी अमली जिंदगी के तजर्बात भी एक दूसरे से शेयर किए। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। डिविजनल पब्लिक स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद कैंपस फैसलाबाद में साइंसी नुमाइश। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स पेश, तामीरी और साइंसी सोच का शानदार मुजाहरा। डिविजनल पब्लिक स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद कैंपस फैसलाबाद में साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए अपनी तामीरी और साइंसी सोच का शानदार मुजाहरा किया। कमिश्नर सिलवत सईद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी और प्रिंसिपल शाहिद महमूद भी कमिश्नर के हमरा थे। मेहमानों ने तलबा के पेश करदा मॉडल्स की तारीफ की। कमिश्नर सिलवत सईद का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ दीगर सरगर्मियां खुश आइन हैं। बच्चों ने जो है वो साइंस के डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं। इसी तरह डिफरेंट आर्ट का आप यहाँ पर देखिए कि बच्चों का टैलेंट बहुत खुल के जो है सामने आया है। तो ये बच्चों के लिए जी उनकी ज़हनी और उनकी जो है वो अदरवाइज़ ग्रूमिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी साथ करें और अपना एक्सप्रेस करते हैं वो थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। तलबा ने पाकिस्तान की सकाफत और मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान पर खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। कुछ बच्चों ने पेंटिंग के जरिए अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार किया। तलबा का कहना था कि हमने मुख्तलिफ साइंस प्रोजेक्ट्स और टैब्लो भी पेश किए हैं। Flood is failure of management. I choose this topic because our country faced heavy rain and flood every year. After rain, water moved down towards land and joined the sea. दिल दिल पाकिस्तान में टैब्लो किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्तों ने भी किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी करो, मैंने इसलिए किया। मैंने पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट किया, हमने टैब्लो भी किया और हमें बड़ा अच्छा लगा। मैं पाकिस्तान के कल्चर बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आज बलोची बनी हुई हूँ। मैंने एक परफॉर्मेंस पेश की है। तैयार किए हैं ये फ्लावर्स और इसके अंदर रोज फ्लावर हैं, लिली हैं और सनफ्लावर्स है और भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। तलबा और तालिबात के वालिदैन, उस्तादा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की कसीर तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और पेश किए गए मॉडल्स को सराहा। ऐसी तकरीबात का एहतमाम होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दीगर सरगर्मियों से भी रोशनास करवाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आंखें कुदरत की बेशबहा नेमत जिसकी हिफाजत लाजमी है। पासबान IT ग्रुप के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन का गफूर फातिमा आई क्लिनिक का दौरा। आंखें कुदरत की बेशबहा नेमत हैं जिसकी हिफाजत लाजमी है। आंखों के इलाज को मुस्तहिक अफराद के लिए आसान करने का अज़म लिए पासबान IT ग्रुप के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर शाह नवाजुल हसन ने गफूर फातिमा आई क्लिनिक का दौरा किया। मेजर शाह नवाजुल हसन ने डॉक्टर हसन रजा से खसूसी मुलाकात की। मेजर रिटायर्ड शाह नवाजुल हसन ने मुस्तहिक और हकदारों के इलाज मुआलजे के लिए 10 लाख रुपए की रकम अतिया की। इनका इस मौका पर कहना था कि इमरादे चश्म में मुब्तला मुस्तहिक अफराद की मदद की जाएगी ताकि वो बआसानी इलाज करवा सके। के बेटे जो डॉक्टर हसन साहब हैं,
ये हमें उसी तरह ही फ्री सर्विस दे रहे हैं कि हमारे कहने पर ये बहुत सारे पेशेंट्स को लाइन अप कर लेते हैं, बारी बारी उनका जो है वो फिर जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है तो उनका वो लेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। मेजर रिटायर्ड शाहनवाजुल हसन ने गफूर फातिमा आई क्लिनिक में आए इमराज़े चश्म के मरीजों से मुलाकात की। डॉक्टर हसन रजा का कहना था कि मुस्तहिक अफराद आंखों के इलाज के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इलाज के साथ साथ अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी। प्राइवेट सर्जरी ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होती है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उस टाइम के ऊपर अगर उस बंदे की हेल्प हो जाए, यानी उसको नज़र आना शुरू हो जाए, तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट सर्विस। और डेफिनेटली इसके अंदर मेजर साहब का और जो हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। महंगाई के दौर में नदारों गरीब अफराद जो प्राइवेट अस्पताल से इलाज नहीं करा सकते, इनके लिए पासबान IT ग्रुप और गफूर फातिमा आई क्लिनिक की जानिब से बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।